Okay, a very good morning to students. Students, today we are going to uh, learn about the design of retaining wall. So you have two types of retaining wall to be designed in your syllabus. One is a simple cantilever type of retaining wall, which you can see over here, which is having a fixed portion, which is having a fixed portion from where you can see there is a cantilever part of retaining wall which is required to be designed. This is called as simple cantilever retaining wall design. Okay, whereas there is another type of design over cantilever over a retaining wall, and that is a design of counterfort retaining wall. Counterfort retaining wall possesses another element that is attached between the base slab and the stem of a retaining wall. Okay, so it is an additional element that is provided in the retaining wall, which is such type of retaining wall is called as a counterfort retaining wall. A counterfort retaining wall. So it is basically a retaining wall which is provided with an additional element which provide a fixity between the base slab and the stem, which provides a support to the stem and it gets connected to the base slab. Okay, so that is called as a counterfort type retaining wall. So let's start with a cantilever retaining wall, which is the mostly asked retaining wall in your syllabus in RTMNU examination. Okay, so let's start with a cantilever type retaining wall. Okay, so let's start with the given data. What would be given to you? The height of a retaining wall will be given to you. The surcharge loading. Actually, see, this is a retaining wall which will have a part of it below ground and part of it above the ground. Okay, above the ground, you will find that if there is a cantilever retaining wall, then there will be a backfill provided at the back of a retaining wall over which there will be a plain surface over which there will be a loading. There will be a loading of a vehicle, which is called as a surcharge loading, which is called as a surcharge loading. I hope it is clear to all of you students. This is called as surcharge loading या superimposed load. Okay, क्या होगा? एक cantilever retaining wall बनाई गई है to retain the earth provided at the back of the retaining wall. So ये रिटेनिंग वॉल का स्टेम पोर्शन है, ये आपका बेस स्लैब पोर्शन है. आपकी स्टेम का कुछ पोर्शन अंडरग्राउंड होता है और कुछ पोर्शन अबव द ग्राउंड होता है. ये बैक पोर्शन जो है रिटेनिंग वॉल का, दैट इज फिल्ड विथ सॉइल. पूरा ऊपर तक भर देते हैं और ऊपर में रोड बना देते हैं और ये आपका बन जाता है एक रोड सरफेस जिसके ऊपर व्हीकल्स चलेंगे, जिसकी लोडिंग रहेगी, यानी कि सुपर इम्पोज लोड जिसको कहते हैं हम. और ये साइड से आप रेलिंग्स प्रोवाइड कर देंगे. रेलिंग्स या आपने देखे हो डिवाइडर्स या जो भी कहते हैं आप, एक पैरापेट वॉल वो प्रोवाइड कर देंगे. ओके, so this is basically a retaining wall, a cantilever retaining wall, which will be provided with a surcharge loading. This is your phi angle, जिसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं. अगर नहीं दिया है तो यू विल अज्यूम इट एज 30 डिग्री. आपको पहले भी बता दिया गया इसके बारे में. यूनिट वेट ऑफ सॉइल विल बी गिवन टू यू. सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल विल बी गिवन टू यू. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कंक्रीट एंड सॉइल, यानी कि बेस स्लैब एंड अर्थ के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रहेगा वो भी गिवन रहेगा आपको. ठीक है, आप स्टार्ट करोगे अपनी स्टेप्स के साथ. दिस विल बी द कैपिटल एच.
टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल दैट विल बी गिवन टू यू। अगर टोटल हाइट नहीं दी है तो आपको ऐसा बताएगा कि हाइट ऑफ अ स्टेम अबोव ग्राउंड, यानी कि इतना पोर्शन, दिस विल बी गिवन टू यू। और डेप्थ ऑफ अ फुटिंग आपको निकालना आता है। डेप्थ ऑफ फुटिंग मतलब इतना होता है, ये या तो गिवन होगा आपको या आपको निकालना पड़ेगा, आपको आता है। तो टोटल एच निकालना है तो दिस प्लस दिस हो जाएगा, दिस विल बी योर टोटल हाइट। आगे चलते हैं, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब, ये बेस स्लैब का थिकनेस ये कितना रहेगा, तो बोल रहा है दिस विल बी एच बाई 10, यानी कितनी हाइट है उसका 10वां हिस्सा विल बी दिस थिकनेस, विल बी दिस थिकनेस। दिस इज योर थिकनेस। ओके, आगे चलते हैं, कितना रहेगा ये एच बाई 10। उसके बाद विड्थ ऑफ अ बेस स्लैब, विड्थ ऑफ अ बेस स्लैब, oh just a second, okay, where were we were discussing about the width of a base slab which will be considered as 0.6 टाइम h, यानी h का आधा नहीं, आधे से थोड़ा ज्यादा, 0.6 टाइम्स जो width आएगी, जो डायमेंशन आएगा दैट विल बी द width ऑफ अ बेस स्लैब। ये आपका width ऑफ अ बेस स्लैब, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका width ऑफ अ बेस स्लैब है। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर है आपको ये। आगे चलते हैं, टो प्रोजेक्शन विल बी 1/3 ऑफ बेस, टो प्रोजेक्शन विल बी 1/3 ऑफ बेस। अब टो किसको बोलते हैं, हील किसको बोलते हैं? देखिए ये आपका स्टेम है, स्टेम के सामने का पोर्शन और ये स्टेम के बैक पोर्शन, यहाँ पे बैक फिलिंग होती है ना, तो ये बैक पोर्शन है, ये सामने का पोर्शन है, तो दिस इज कॉल्ड एज टो, दिस इज कॉल्ड एज हील। बेस स्लैब का ये पोर्शन टो है, ये पोर्शन हील है। ये जितना कैंटिलीवर पोर्शन है दिस इज योर टो, दिस इज योर टो पोर्शन, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज योर हील पोर्शन। तो टो कितना रहेगा बोल रहा है, 1/3 ऑफ बेस, बेस की जितनी वैल्यू आएगी उसका 1/3 हिस्सा विल बी द टो। ओके, स्टेम थिकनेस एट टॉप इज इक्वल टू 200 mm, जो हम अज्यूम करेंगे। स्टेम थिकनेस एट टॉप मतलब ये वाली, ये सामने की, ये जो रहेगी, दिस इज योर स्टेम थिकनेस एट टॉप, जो कि हम अज्यूम करेंगे सीधा सीधा 200 mm, ठीक है। आगे चलते हैं, डिजाइन ऑफ स्टेम स्टार्ट करेंगे हम इसके डिजाइन से। बेस स्लैब का डिजाइन सेकंड पार्ट रहेगा, पहला पार्ट ए इज डिजाइन ऑफ स्टेम। उसमें क्या कर रहे हैं हम, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑन स्टेम, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर, अर्थ का कितना प्रेशर आ रहा है स्टेम पर वो देख रहे हैं। तो पहला प्रेशर तो हमको पता है क्या आ रहा है, दिस इज सरचार्ज लोडिंग, ठीक है, जो आएंगी स्टेम पर किस फॉर्म में आएंगी, ऊपर कितनी रहेगी नीचे कितनी रहेगी, जितनी ऊपर रहेगी उतनी ही नीचे रहेगी, ठीक है, जितनी ऊपर रहेगी उतना ही नीचे रहेगी। तो सरचार्ज लोडिंग जितनी ऊपर रहेगी, सपोज इतनी है तो नीचे भी इतनी ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अर्थ प्रेशर जो है ऊपर कितना होगा, ऊपर तो अर्थ है ही नहीं, तो ऊपर अर्थ प्रेशर 0 रहेगा, लेकिन नीचे अर्थ प्रेशर कितना रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो देखिए ऊपर 0 है तो नीचे मैक्सिमम है, नीचे ये देखिए इतना है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ऊपर की वैल्यू कितनी होगी अर्थ प्रेशर की, सीधा सीधा आपको पता है जब ऊपर अर्थ ही नहीं है तो अर्थ प्रेशर ऊपर 0 होगा, ठीक है। तो बॉटम में अर्थ प्रेशर कितना होगा, मैक्सिमम होगा, तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा, ऑब्वियसली उसका डायग्राम इस तरीके से ही बनेगा कि 0 है ऊपर और नीचे सबसे ज्यादा है, तो ये ट्रायंगल फॉर्म में अर्थ प्रेशर का डायग्राम बनेगा, जहां ऊपर वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी, और नीचे वाली वैल्यू कितनी रहेगी, जितनी हाइट है, जितनी हाइट है अर्थ की, हाइट कितनी है अर्थ की, ये देखिए यहाँ तक, यानी कि एच। अब आप प्रेशर निकाल रहे हो तो उसका यूनिट वेट चाहिए आपको सॉइल का,
Gamma into H will be the value of earth pressure at base. Gamma into H will be the earth pressure at base. लेकिन कोएफिशिएंट भी उसके साथ साथ मल्टीप्लाइड रहेगा. कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर multiplied by unit weight of soil into height of soil. Unit weight of soil into height of soil will give you the pressure, and you need to multiply it with the coefficient of active earth pressure. Okay. आप सबको ये चीज पता है. अब आगे चलते हैं, हम सरचार्ज की बात करते हैं. सरचार्ज पे कितना प्रेशर है? दैट इज क्यू. वो आपको पता ही है, लेकिन सिर्फ क्यू लेंगे क्या? नहीं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे के ए से, यानी कि कोएफिशिएंट से. तो देखिए, प्रेशर की यूनिट किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यहाँ पर ऑलरेडी प्रेशर गिवन है, तो हमने प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर ले लिया है. तो ये हमको मिल गया है सरचार्ज लोडिंग का प्रेशर डायग्राम. ठीक है, जो कि नीचे से लेके ऊपर तक सेम रहेगा. और अर्थ प्रेशर डायग्राम कैसा बनेगा? ट्रायंगुलर बनेगा, जो कि ऊपर 0 रहेगा और नीचे मैक्सिमम रहेगा. अब इसका नीचे प्रेशर कितना रहेगा? प्रेशर की यूनिट किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ दिख रही है. तो आप क्या करोगे? गामा यानी कि यूनिट वर्ड लोगे, दैट इज किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? हाइट से. कितनी हाइट का प्रेशर है? दैट इज एच. तो किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय मीटर, दैट विल गिव यू अ प्रेशर इन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लेकिन आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? विथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ हम क्या कर रहे हैं? ये एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाल रहे हैं. एक्टिव अर्थ प्रेशर कैसे निकालते हैं? धक्का कैसा पड़ने वाला है स्टेम पर? इस तरीके से, जैसा एरो बना हुआ है. करेक्ट है. कौन से दो धक्के लग रहे हैं? PA1 एंड PA2. PA1 किस चीज का है? ये सरचार्ज का है. सरचार्ज जब लोड ऐसा आएगा, सरचार्ज लोड जब ऐसा आएगा, तो वो स्टेम को कैसा धक्का देगा? स्टेम को ऐसे ही धक्का देगा. ठीक है. अब धक्का कहाँ से देगा? वो धक्का देगा सीजी से. करेक्ट है. वो धक्का कहाँ से देगा? वो धक्का देगा आपका सीजी पॉइंट से. सीजी कहाँ रहेगा रेक्टेंगल का? h/2 एंड h/2. कौन सा h चल रहा है यहाँ पे? स्मॉल h, क्योंकि स्टेम पे काम कर रहे हैं. तो h/2 और h/2. आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर है आपको. ये काम करेगा h/2 पे. करेक्ट है. ये एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ सरचार्ज लोडिंग विल एक्ट एट h/2. अब दूसरे वाले एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करते हैं, दैट इज PA2. PA2 किससे आ रहा है? सॉइल की वजह से. ये जो सॉइल यहाँ पर भरी हुई है, वो भी ऐसा धक्का मार रही है. करेक्ट है. अब वो भी धक्का मारेगी तो अपने प्रेशर डायग्राम के सीजी से. करेक्ट है. क्योंकि सबका यानी टोटल लोड हम अज्यूम करते हैं कहाँ से पास हो रहा है? सीजी से. करेक्ट है. तो टोटल प्रेशर हम कहाँ से अज्यूम कर रहे हैं पास हो रहा है? और पास हो रहा है सीजी से. सरचार्ज लोडिंग का रेक्टेंगुलर डायग्राम था, तो h/2. अर्थ प्रेशर का, अर्थ जो भरी है उसका अर्थ प्रेशर का डायग्राम कैसा बना? ट्रायंगुलर. ट्रायंगुलर का सीजी कहाँ पे आएगा? एट h/3 फ्रॉम बेस, एट h अपॉन 3 फ्रॉम बेस. आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर है आपको. अब PA1 और PA2 का रिजल्टेंट क्या रहेगा? दैट विल बी PA. करेक्ट है. आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो रहा है आपको. PA1 और PA2 का रिजल्टेंट विल बी PA. अब PA1 कैसे निकालते हैं पहले वो देख लेते हैं. देखिए, जैसे एक्टिव अर्थ प्रेशर्स आर कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द फिगर. तो PA1 will be calculated by the formula area of rectangle, that will be length into breadth. अब लेंथ कितनी है? h,
और ब्रेथ कितनी है, के ए क्यू करेक्ट है। ये आ गया आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर। इसकी यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट है किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट मीटर, तो बचा किलोन्यूटन पर मीटर। ये आपका आ गया एक्टिव अर्थ प्रेशर बिकॉज ऑफ सरचार्ज लोडिंग। सिमिलरली एक्टिव अर्थ प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस अर्थ, बैकफिल अर्थ, Pa2 की वैल्यू, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाफ बेस है ये के गामा क्यू, सॉरी के गामा एच, और हाइट कितनी है एच, तो ये वैल्यू आ जाएगी। रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट इज Pa1 प्लस Pa2। अब रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, हम मान रहे हैं इट इज एक्टिंग एट एच बार फ्रॉम बेस, it is acting at h bar from base, and for determining the location of resultant you need to apply Varignon's theorem। Varignon's theorem क्या बोलता है, sum of moment of all the forces equals to moment of resultant about the same point, sum of moment of all the forces about any point equals to moment of resultant about the same point। तो Pa1 का moment at ये bottom प्लस Pa2 का moment at bottom is equals to Pa का moment at bottom, करेक्ट है। तो Pa का मोमेंट एट बॉटम इज Pa इंटू एच बार, ये देखिए Pa इंटू एच बार, ये देखिए Pa इंटू एच बार प्लस इज इक्वल टू Pa1 इंटू एच बाई टू, ये देखिए Pa1 H1 प्लस Pa2 H2 लिखा है इसने, आगे जाएंगे तो H1 में हो जाएगा H बाई टू और H2 में आ जाएगा H बाई थ्री। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर है आपको। तो H बाई टू पता रहेगा, ये H बाई थ्री पता रहेगा, Pa1 पता रहेगा, Pa2 पता रहेगा, Pa पता रहेगा, तो H बार निकल जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अल्टीमेट करना है तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोमेंट निकालना है तो मोमेंट विल बी रिजल्टेंट, ये देखिए ये अगर बेंड होगा तो कैसे बेंड होगा, Pa इंटू एच बार करके, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस करके ये मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब थिकनेस एट बेस ऑफ स्टेम, थिकनेस अगर निकालना है एट बेस ऑफ स्टेम, देखिए आप स्टेम पे काम कर रहे हो, स्टेम के टॉप पे तो आपने 200 अज्यूम कर लिया, लेकिन बॉटम पे कितनी थिकनेस है आपको नहीं पता, तो ये डेप्थ ही हुई है आपकी, डेप्थ ऑफ अ स्लैब ही बोलो। तो डेप्थ निकालने के लिए क्या करते हैं आप, एमयू लिमिटिंग, एमयू इक्वल्स टू एमयू लिमिटिंग करते हैं, है ना। अब आपका FE 415 है तो 0.138 FC के BD स्क्वायर, 500 रहता तो 0.133 लेते थे, 250 रहता तो 0.148 लेते थे। तो आपको ये याद रखना है 0.148, 0.133, सॉरी 0.148, 0.138, 0.133, है ना। 0.148 आगे बढ़े तो 0.138, फिर आगे बढ़े तो 0.133, तो आपका है FE 415, उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला होता है 0.138 FC के BD स्क्वायर इक्वल्स टू MU। इसमें आप B कितना लेंगे, आपकी स्टेम का B मतलब इसकी लेंथ, लंबाई, इसमें तो दो ही डायमेंशन है, एक तो लंबाई एक तो चौड़ाई, चौड़ाई इज योर D एंड लंबाई। अब रिटेनिंग वॉल की लंबाई तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी लंबी जाएगी हमको नहीं पता, हम इसको 1000 लेते हैं, तो इसको आप 1000 ले लोगे, तो इससे आपका D आ जाएगा, ठीक है, ये D आ जाएगा। अब आप उसको कैपिटल D बनाओगे, तो कैपिटल D बनाने के लिए देखिए आपको बता रहा है कि आप क्लियर कवर लोगे 40 mm और बार डायमीटर 12 mm, क्योंकि ये स्लैब जैसा है। देखिए ये स्टेम जो है इसमें जो लंबाई है इसकी बहुत लंबी है, तो ये एक स्लैब की तरह एक्ट करेगा। इसमें आप एकदम बड़े बड़े डायमेंशन के बार नहीं डालोगे, आप डायमीटर रखोगे 12 mm का, क्लियर कवर 40, तो स्मॉल डी प्लस 5/2 प्लस 40, तो आपका कैपिटल डी आ जाएगा। आप मेन रेनफोर्समेंट निकाल लोगे, AST मिनिमम 0.12% BD, आपको पता है AST मेन, ये फॉर्मूला भी पता है आपको, इसमें आप वैल्यू निकाल लोगे, इट शुड बी ग्रेटर देन AST मिनिमम, करेक्ट है। अगर ये बड़ा नहीं रहेगा तो आप AST मिनिमम एडॉप्ट कर लोगे। आपने 12 mm का बार लिया है तो आप स्पेसिंग निकाल लोगे, ठीक है। अब रेनफोर्समेंट आप डालते चले जाओगे, ये देखिए इसमें रेनफोर्समेंट डालते चले जाओगे, लेकिन देखिए आप ऊपर में प्रेशर कम है, नीचे में प्रेशर ज्यादा है, आपने नीचे का प्रेशर कंसिडर किया है, ये देखिए आपने ये CG का प्रेशर कंसिडर किया है, CG का प्रेशर इज द मैक्सिमम प्रेशर, करेक्ट है। लेकिन
मुझे ये बताइए, क्या ऊपर में भी आपने मैक्सिमम प्रेशर के हिसाब से काम किया है, मैक्सिमम प्रेशर इज एक्टिंग एट बेस, करेक्ट है? लेकिन क्या आप मैक्सिमम प्रेशर आपके स्टेम के ऊपर भी आ रहा है, बीच में भी आ रहा है? नहीं, वो आ रहा है सिर्फ बॉटम पोर्शन पे। तो आप क्या करोगे, ऊपर अननेसेसरी उतने बार क्यों चलाओगे, आप करोगे कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट के लिए आईएस कोड ने ये एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप ये क्राइटेरिया पे काम करोगे। ये क्राइटेरिया क्या बोलता है देखिए, ये कहता है कि नीचे आप एमयू प्रोवाइड कीजिए, या ऐसा बोलो कि आप फुल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कीजिए, बीच में आप आधा कर दो उस मोमेंट को, और ऊपर के पोर्शन पे उसको आप और भी आधा कर दो, यानी कि mu/4 कर दो। अब ये पोर्शन कैसे डिवाइड किया है वो बता रहे हैं, देखिए सपोज ये पूरा h है, तो ये पोर्शन है आपका 0.79h और ये पोर्शन है 0.63h। तो वो बोल रहा है 0.63h पे आप mu/4 रखिए और 0.79h माइनस 0.64h या 0.63h, मतलब ये पोर्शन, इस पर mu/2 रखिए और बचे वाले पे पूरा रखिए। यानी कि यहाँ पे फुल रेनफोर्समेंट रखिए, यहाँ पे रेनफोर्समेंट को आधा कर दीजिए और यहाँ पे और आधा कर दीजिए। तो देखिए सपोज मेरे 12 mm के 12 mm फाइव के रेनफोर्समेंट है जो निकले 5 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ऊपर आप आधे प्रोवाइड करोगे, यानी कि 5 mm सेंटर टू सेंटर है तो यहाँ 10 mm सेंटर टू सेंटर चलाओगे। कहने का मतलब देखिए, यहाँ देखिए आप, सिंपल दिख रहा है। अगर ये 5 mm सेंटर टू सेंटर चल रहे हैं तो आप ऊपर क्या करोगे, 10 mm सेंटर टू सेंटर चलाओगे। 10 mm सेंटर टू सेंटर में क्या करोगे आप, एक बार लोगे, यहाँ देखिए, एक बार लोगे एक छोड़ दोगे, एक लोगे एक छोड़ दोगे, ऑटोमेटिकली 10, यानी कि आधा हो जाएगा रेनफोर्समेंट। और ऊपर क्या करोगे, 20 mm सेंटर टू सेंटर लोगे, यानी कि देखिए पहला वाला बार ऊपर ले जा लोगे, दूसरा बार तो पहले ही छूट गया था, तीसरा बार आया था लेकिन अब ऊपर हम छोड़ देंगे उसको, चौथा बार तो पहले ही छूट गया था, ये पांचवा बार उठ जाएगा। समझ में आया? देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगर ये 5-5 mm की स्पेसिंग पर है तो ऊपर वालों में क्या किए, 10 mm की स्पेसिंग बनाए। कैसे बनाए, पहला बार लिए, दूसरा छोड़ दिए, तीसरा लिए, चौथा छोड़ दिए, पांचवा लिए। ऊपर क्या करोगे आप, और भी आधा करोगे, तो वो कैसा करोगे, ये वाला बार, पहला वाला बार ले लोगे, दूसरा वाला बार छोड़ दोगे, तीसरा वाला बार ले लोगे, चौथा छोड़ दिए, पांचवा ले लिए। समझ में आया? इस तरीके से ऑटोमेटिकली आधा और आधे का आधा रेनफोर्समेंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कर्टेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट। जो जिसकी हाइट कैसे डिवाइड करते हैं, नीचे वाला, ये वाला कितना साइज रहेगा, 0.63h, ठीक है? ये वाला साइज कितना रहेगा, 0.79h, और ये टोटल h। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर है आपको। हम वैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट पे। इन लोग को टाई भी तो करना पड़ेगा, है ना? इनके लिए एक हॉरिजॉन्टल बार्स भी तो डालने पड़ेंगे। इन लोग को टाई कैसे करेंगे आप, इनको टाई करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल बार्स यानी कि ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट या डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट लगेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट तो मिनिमम रेनफोर्समेंट होते हैं, उसको आप 0.12% बीडी से निकाल लोगे, 8 mm का बार लोगे, स्पेसिंग निकाल लोगे, ये हो गया। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला आप सबको पता है, आपने आरसीसी में पढ़ा है, 0.87 FI 5/4 ताउ बीडी। ताउ बीडी की वैल्यू पता है आपको, 1.2 इंटू 1.6, करेक्ट है? FI भी पता है, फाई आपको पता है। ये लगता है आपका L/D, यहाँ देखिए, ये आप सॉरी, ये LD, दिस कॉल्ड एज योर डेवलपमेंट लेंथ। कितनी प्रोवाइड करेंगे, 0.87 FI 5/4 ताउ बीडी से जितनी लेंथ आएगी, करेक्ट है? ये आपका हो गया डिजाइन ऑफ स्टेम। मोस्टली आपको एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है, डिजाइन ऑफ स्टेम। एनीवेज हम नॉलेज के लिए हम पूरा पढ़ेंगे, दैट इज डिजाइन ऑफ बेस स्लैब को भी कवर करेंगे। अब बेस स्लैब के डिजाइन,
के लिए बेस पर कितना लोड आ रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला लोड क्या कर रहा है, देखिए ये स्टेम का लोड आ रहा है। स्टेम आपके कुछ अलग ही फिगर का है, तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे इनटू टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स। पहला है रेक्टेंगल, दूसरा है ट्रायंगल। तो पहला W1, ये देखिए इतना पोर्शन लिया मैंने स्टेम का। W2 ये ट्रायंगुलर पोर्शन लिया, ठीक है। W3 बेस स्लैब का खुद का, ये बेस स्लैब है ना आपका, तो ये बेस स्लैब का खुद का वेट सबको सीजी से पास करा रहे, क्योंकि इसका हर पार्ट पर पोर्शन, हर पोर्शन पर इसका वेट है। लेकिन हम शो कहाँ से करेंगे, ओवरऑल वेट इज पासिंग थ्रू, या ऑल द वेट इज पासिंग थ्रू सीजी। तो ये W1, ये W2, ये W3, ये देखिए बैकफिल का लोड दैट इज W4, और ये सरचार्ज का लोड दैट इज W5। इसके साथ साथ मैंने सबके डिस्टेंसेस भी मार्क किया, देखिए फ्रॉम पॉइंट ए। अब जैसे W1 की बात करते हैं, तो W1 के पॉइंट से ये A तक का डिस्टेंस x1, W2 के पॉइंट से A तक का डिस्टेंस x2, W3 के पॉइंट से A तक का डिस्टेंस दैट इज x3, ये W4 का x4, W5 का x5, करेक्ट है। ये सब मार्क कर लिया है, दैट इज, दिस इज कैपिटल H, ठीक है। ये स्मॉल h, और ये आपकी थिकनेस ऑफ बेस स्लैब। अब इनका भी प्रेशर डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं प्रेशर डायग्राम बनाता हूँ इस सरचार्ज का और अर्थ का, तो बेस पर, अब देखिए आपका बेस का हाइट चेंज हो गया है। अब आप बेस स्लैब पे काम कर रहे हो, तो बेस स्लैब के बॉटम पे इस सरचार्ज का लोड कितना आएगा और इस अर्थ का लोड कितना आएगा वो निकाल रहे हैं हम। सरचार्ज का लोड तो वही रहेगा, के ए क्यू, चाहे वो यहाँ देखो चाहे नीचे देखो, वो के ए क्यू ही रहेगा। लेकिन अर्थ का प्रेशर कितना रहेगा, अब अर्थ देखिए इतनी हाइट नहीं, इतनी हाइट तक है, करेक्ट है। तो अब हाइट चेंज हो गई इसकी, गामा इंटू एच, कैपिटल एच, करेक्ट है। क्योंकि अब हाइट चेंज हो गई तो ये आ जाएगा गामा इंटू कैपिटल एच। समझ में आया, दिस इज योर अर्थ प्रेशर डायग्राम, जिसमें हाइट अब चेंज हो गई है, बाकी सब एज इट इज है, और दोनों में मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर के। हाँ, अब के पे बात करते हैं। के छूट गया था शायद हमारा, हमने शायद डिस्कस नहीं किया के पे। के इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, द फॉर्मूला फॉर व्हिच इज 1 - sin pi upon 1 + sin pi if the earth is filled in rectangular state, ओके। अगर वो रेक्टेंगुलर स्टेट में, ये देखिए डब्बे फॉर्म में अगर अर्थ भरी हुई है, तो उसका फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का 1 - sin pi upon 1 + sin pi, ओके। अगर इसका फिगर चेंज होता है तो इसका फॉर्मूला चेंज होगा, वो मैं आपको फिगर न्यूमेरिकल में बता दूंगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एनीवेज ये आता है आपको कि अर्थ प्रेशर कैसे निकालते हैं, PA1 PA2 कैसे निकालते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। PA1 PA2 निकाल लोगे आप। ये प्रेशर भी कैसे निकालते हैं वो आपको समझ जाएगा, देखते हैं कैसे। तो देखिए मैंने लोड्स को दो फॉर्म में लोड्स को निकाल रहा हूँ विथ इट्स डिस्टेंस, ठीक है। लोड्स, टोटल ग्रेविटी लोड। अब ग्रेविटी लोड में ये आएगी क्या, नहीं, ग्रेविटी लोड में ये आएंगे W1 से W5 तक, ये W1 2 3 4 5। W1 कैसे निकालेंगे, W1 कैसे निकालेंगे आप, इसका फिगर कैसा बना है, रेक्टेंगल। W1 will be calculated by the formula area of figure, area of rectangle, that is width into height, h, width into height, ठीक है। लेकिन आप प्रेशर निकाल रहे हो, लोडिंग निकाल रहे हो, तो आपको गामा भी लगेगा उसका, यानी कि यूनिट वेट, है ना। किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय मीटर विल गिव यू द वैल्यू इन किलो न्यूटन, विल गिव यू द वैल्यू इन किलो न्यूटन, करेक्ट है। अब सेकेंड W2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, अब बेस, बेस देखते कैसे आ रही है। बेस की वैल्यू इतनी है कि पूरी नहीं, इतने में से बी टॉप माइनस करना पड़ेगा, बी बेस में से बी टॉप माइनस करना पड़ेगा, बी बेस में से बी टॉप माइनस की, ये बेस हो गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी, ये h हो गया। लेकिन
लोड निकलेगा कैसे? नहीं, आप जब तक उसको यूनिट वेट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे लोड नहीं निकलेगा, तो आप यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर लिए। थर्ड W3, सिंपल है, W3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि बेस इंटू हाइट, B इंटू डी और मल्टीप्लाइड बाय गामा। W4 क्योंकि ये सॉइल का वेट है और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में BH इंटू एच, BH इंटू एच और गामा सॉइल, ठीक है। आगे W5 सरचार्ज लोडिंग है, तो Q और ये किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो इनटू ये BH देखिए और इनटू इसकी ये लंबाई कितनी रहेगी नहीं पता, तो मैं कितनी कंसीडर करूंगा 1। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आपको। इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी निकालना आता है आपको। x1 का डिस्टेंस इतना कैसे निकालूंगा, तो ये W1 रेक्टेंगल के CG पर है यानी कि B टॉप का आधा डिस्टेंस यानी कि 0.1 और कैसे निकालूंगा इसको, B बेस में से क्या माइनस कर दूंगा, यहाँ का 0.1, तो B बेस में से 0.1 माइनस कर दूंगा और BT से प्लस कर दूंगा। ये देखिए देखिए ये क्या कर रहा है, B ले रहा है उसमें से BH माइनस कर दे रहा है और ये B टॉप का आधा माइनस कर दे रहा है, तो भी आ जाएगा, करेक्ट है। B माइनस BH माइनस ये B टॉप का आधा, B माइनस BH माइनस B टॉप का आधा, करेक्ट है। ये सब आपको आता है, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से निकालते हैं, हम न्यूमेरिकल पे आएंगे जब आपको खुद को समझ जाएगा। ये आप बस समझ लीजिए, आपको लोड्स निकालने हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस निकालने हैं, ताकि आप ये लोड का जब रिजल्टेंट निकालो तो रिजल्टेंट का डिस्टेंस भी निकाल सको। ये क्यों काम आता है, आपको बेंडिंग मोमेंट में काम आता है। टोटल लैटरल अर्थ प्रेशर कितना है वो देख लेते हैं। PA1 आपको आता है, PA2 आपको आता है, उन लोग का डिस्टेंस आपको पता है, इन दोनों से एक रिजल्टेंट निकालना है और रिजल्टेंट का डिस्टेंस निकालना है, ये आपको आता है। रिजल्टेंट एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये देखिए दो रिजल्टेंट्स और इनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अब दो रिजल्टेंट का एक रिजल्टेंट निकालना है, आपको इसका फॉर्मूला मैकेनिक्स ने बता चुका है कि आप इसको कैसे निकालोगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला, if there are two forces in x direction, one in x direction and one in y direction, then R is equals to under root of summation of fx square plus summation of fy square, है ना। यही फॉर्मूला आपने पढ़ा है, summation of fx square plus summation of fy square resultant is equals to this, है ना। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं that resultant is equals to under root of resultant in x direction का स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट इन y डायरेक्शन का स्क्वायर, करेक्ट है। तो आपने वही किया, एक आपके पास रिजल्टेंट है x डायरेक्शन में, एक है रिजल्टेंट y डायरेक्शन में, तो आप दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ रिजल्टेंट इन x डायरेक्शन का स्क्वायर
प्लस रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर, ये आपका आ गया रिजल्टेंट। अब ये दोनों रिजल्टेंट के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है तो आप दोनों का जो एक किंग रिजल्टेंट आ रहा है उसका भी आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकाल सकते हो। तो आपने ये रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकाल लिया। आई होप स्टूडेंट्स इतना जितना आपने अभी समझा है, इतना समझ के हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं। रिजल्ट न्यूमेरिकल पे हम आगे का समझते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यूमेरिकल बिकॉज इट्स गोइंग वेरी लेंथी राइट नाउ। सो लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल। Design a cantilever wall to retain a earth with a backfill sloped at 20 degree to the horizontal। बैकफिल भरी हुई है, उसको रोक रहा है ये स्टेम, इसको डिजाइन करना है। डिजाइन डिजाइन अ वॉल टू रिटेन अ अर्थ विच इज backed at 20 degree sloped with a हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री पे स्लोप्ड है इस तरीके से। तो इस पर सरचार्ज लोडिंग तो नहीं रहेगी, ये इस तरीके से सॉइल रोका है इस रिटेनिंग वॉल ने। चलिए देखते हैं आगे। The top of the wall is 5.5 meter above the ground level। Top of the wall is 5.5 meter above the ground level। आगे बढ़ते हैं। And the foundation depth may be taken as 1.2 meter from the ground level। From the ground level, foundation depth is 1.2 meter। I hope students ये भी clear हो गया। With the SBC of soil 120 kilonewton per meter square। आपको SBC of the soil given है 120 kilonewton per meter square। Assume that backfill has a unit weight of 17 kilonewton per meter cube। यहाँ पे जो बैकफिल भरी हुई है उसका यूनिट वेट बता दिया गया है, दैट इज 17 kilonewton per meter cube। एंड एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस of 35 degree। Angle of shearing resistance, yeah, angle of repose is 35 degree। If not given, then you will consider it as 30 degree। Okay। Further, assume a coefficient of friction between the soil and concrete as 0.55। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन आएगा म्यू, उसकी वैल्यू दिया है 0.55। यूज M20 ग्रेड कॉन्क्रीट Fe415 स्टील। Fe415 बोला है मतलब आपको MU लिमिटिंग 0.18 FC के BD स्क्वायर रहेगा। ड्रॉ अ डिटेल रेनफोर्समेंट स्केच, ठीक है। FC के इतना, FY इतना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका इतना। स्टार्ट करते हैं हमारी स्टेप। प्रिलिमिनरी डायमेंशन ऑफ अ रिटेनिंग वॉल। प्रिलिमिनरी डायमेंशन आप एच कैसे निकालोगे? ग्राउंड लेवल के ऊपर की हाइट और ग्राउंड लेवल के नीचे की हाइट दोनों दिया है, आप दोनों को प्लस कर दिए, एच आ गया। थिकनेस ऑफ अ बेस स्लैब, थिकनेस ऑफ अ बेस स्लैब, इसकी ये थिकनेस कितनी रहेगी, ठीक है, ये बता दिया है। आप कितना लेंगे? 1/3 हिस्सा ऑफ टोटल एच, यानी कि ये आ गई 0.67। आप इसको 0.7 लो, पीछे नहीं जाना कभी, यहाँ पीछे लेके चला गया, 0.5 कर दिया। एनीवेज आप आगे ले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अभी हम पीछे मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल के लिए। विड्थ ऑफ अ बेस स्लैब, विड्थ ऑफ अ बेस स्लैब यानी कि आपको ये विड्थ कितनी रखना है वो देखते हैं। ये आपको विड्थ कितना रखना है, ये विड्थ कितना रखना है वो देखते हैं। आपको बता दिया गया है कि विड्थ ऑफ अ बेस स्लैब शुड बी 0.5 to 0.7 टाइम्स एच। तो आप 0.6 मान लो, 0.6 टाइम्स एच ले लेते हैं, तो 0.6 इंटू 6.7 ये वैल्यू आई है। आप 4 मीटर कंसिडर करें, इसको आप थोड़ा सा पीछे राउंड ऑफ कर सकते हो क्योंकि 4.02 ही है। तो विड्थ आपने निकाला है 4 मीटर। टो प्रोजेक्शन इज 1/3 ऑफ बेस विड्थ, यानी 1/3 ऑफ 4 दैट इज 1.33। आप इसको 1.5 ले रहे हो। बेस विड्थ आपको, टो प्रोजेक्शन आपको पता है, ये वैल्यू ये आपने ले लिया।
1.5 mm, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने इस पे ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। स्टेम थिकनेस एट टॉप पे स्टेम थिकनेस 200 mm अज्यूम कर लिया सीधा सीधा। स्टेप 2, डिजाइन ऑफ स्टेम, स्टेम को डिजाइन करते हैं। डिजाइन स्टेम एज अ कैंटिलीवर स्लैब सब्जेक्टेड टू लैटरल अर्थ प्रेशर। इस पर कैसा प्रेशर आ रहा है? लैटरल अर्थ प्रेशर। अब देखिए सॉइल कैसी भरी है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में भरी है क्या? ऐसी ऐसी भरी है क्या? नहीं। अगर ऐसी भरी रहती तो लोडिंग आती थी ऐसी, ठीक है, समझ गए आप। लेकिन अभी स्टेम बैकफिल कैसी भरी है? 20 डिग्री पे इंक्लाइंड, तो आपका प्रेशर भी कैसा आएगा? 20 डिग्री पे इंक्लाइंड, करेक्ट है। और ये आपके डायग्राम भी कैसे बनेंगे? 20 डिग्री पे इंक्लाइंड, करेक्ट है। बाकी सब सेम ही रहेगा। पीए सरचार्ज लोडिंग है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधी जमीन ही नहीं है, जमीन कैसी है? टेढ़ी है। सीधी जमीन रहती, सरचार्ज लोडिंग रहती तो सरचार्ज लोडिंग डायग्राम ऐसा बनता, और फिर उसके बाद आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम कैसा बनता? ये इस तरीके से बनता था आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम, है ना। दोनों की आप लोडिंग निकालते थे, एक की लोडिंग ऐसी, एक की लोडिंग ऐसी, दोनों भी ऐसी रहती थी क्योंकि बेस आपका फ्लैट रहता तो आपका प्रेशर भी फ्लैट रहता, लैटरल अर्थ प्रेशर, ठीक है। एनीवेज आपका क्योंकि जमीन 20 डिग्री से टेढ़ी है और उस पर सरचार्ज तो नहीं रहेगा, सिर्फ अर्थ प्रेशर डायग्राम रहेगा, तो अर्थ इस तरीके से रहेगा, करेक्ट है। 20 डिग्री इंक्लाइंड, इस तरीके से आपका अर्थ प्रेशर डायग्राम आएगा। और इसमें एक्टिव अर्थ प्रेशर या लैटरल अर्थ प्रेशर भी ऐसा रहेगा 20 डिग्री से इंक्लाइंड, ठीक है। वैल्यूज तो सेम रहेगी वैसी जैसी पहले थी। कैसे निकालेंगे? प्रेशर एट बेस क्या आएगा? गामा इंटू एच, ये एच है, गामा इंटू एच मल्टीप्लाइड बाय के ए। के ए का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस साइन फाइव अपन 1 प्लस साइन फाइव, लेकिन वो किसके लिए? अगर सॉइल सीधी है तो, लेकिन अगर सॉइल टेढ़ी है तो फॉर्मूला चेंज है। फॉर्मूला देखिए क्या है के ए का, कॉस बीटा ब्रैकेट में कॉस बीटा माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए क्या है, जो ऊपर है वही नीचे है, बस नीचे ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, और यहाँ पे कॉस बीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका बीटा एंगल ये है, कितने से आपकी स्लोप्ड है? तो 20 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, करेक्ट है। और फाई आपका कितना रहेगा? 35 डिग्री, ठीक है। तो आप के निकाल लोगे। गामा तो आपको दिया हुआ है 17, हाइट भी आपको पता है, हाइट कितनी है? एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच कितना रहेगा? थिकनेस ऑफ बेस स्लैब कितना है? 0.5, और कैपिटल एच कितना है? 6.7। तो 6.7 में से 0.5 माइनस कर दो, दैट विल बी द हाइट ऑफ स्टेम, दैट इज 6.2। देखिए एच इज इक्वल टू 6.2, 17 इंटू 6.2, और यहाँ के की वैल्यू, यहाँ आपको प्रेशर एट बेस मिल गया। आप पी ए की वैल्यू निकाल लोगे बाय द फॉर्मूला एरिया ऑफ फिगर, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए हाफ इंटू बेस, इंटू बेस कितना है? के गामा एच, और हाइट कितनी होगी? इंटू एच, ठीक है, जिसको आपने एच स्क्वायर के फॉर्म में इधर लिख दिया। ये आ गई पी ए की वैल्यू, ठीक है। लेकिन पी ए आपका पॉइंट लोड है, तो आप क्या करोगे? यहाँ से लंबाई जो है उस लंबाई को मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर लेंथ, तो आपका ये किलो न्यूटन में आ जाएगा, करेक्ट है। पीए को आप अल्टीमेट में कन्वर्ट कर लोगे विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1.5। अब ये पीए एक्ट कहाँ करेगा? दिस विल एक्ट एट h/3 फ्रॉम बेस, करेक्ट है। इसका सीजी तो वही रहेगा ना जहां रहना चाहिए, और ये h/3 फ्रॉम बेस रहेगा, करेक्ट है। ओके, अब ये टेढ़े फोर्स से मैं डील करूंगा क्या? नहीं, मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए फोर्स या वर्टिकल चाहिए फोर्स?
तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा। मुझे मैकेनिक्स ने सिखाया है हाउ टू डिटरमाइन और फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स के कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, तो आपको बताया गया है इफ द फोर्स इज इंक्लाइंड एट एनी एंगल देन इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी 1 एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी 1। एक को मिलेगा cos बीटा, एक को मिलेगा sin बीटा। जो हॉरिजॉन्टल रहेगा उसको cos बीटा देंगे हम, और वर्टिकल को sin बीटा विथ पेरेंट नेम दैट इज पीए। करेक्ट है, क्योंकि आपका एंगल हॉरिजॉन्टल से है तो हॉरिजॉन्टल को cos मिला, सेकंड वाले को sin मिला, cos बीटा sin बीटा और पेरेंट का नाम दोनों के साथ। करेक्ट है, ये हो गया आपके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस। अब अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट एट बेस ऑफ स्टेम, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट एट बेस ऑफ स्टेम। बेंडिंग मोमेंट किससे होगा, इससे होगा या इससे होगा? ये टेढ़ा कर पाएगा क्या स्टेम को? नहीं, ये सीधा सीधा नीचे जाएगा ग्रेविटी में। ये लैटरल प्रेशर से है, दिस विल ट्राई टू बेंड माय स्टेम विथ दिस फोर्स एंड दिस डिस्टेंस। तो मोमेंट, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट विल बी पीए cos बीटा इंटू दिस 6.2/3 PAU cos बीटा इंटू ये जो डिस्टेंस है h/3। दिस विल बी द मोमेंट दैट विल ट्राई टू बेंड माय स्टेम। इसके लिए मैं डिजाइन करूंगा। करेक्ट है, अब थिकनेस निकालूंगा मैं स्टेम की, कंसिडरिंग द फोर्स जो उस पर आ रहा है। किस फॉर्मूले से? ये इक्वेट करने वाले फॉर्मूले से। आपका एमयू अवेलेबल है, आपने फॉर्मूले में वैल्यू डाला, डी निकाल लिया। आपने कवर, क्लियर कवर 40 लिया, डायमीटर आप 12 mm लो या 16 mm लो, जो आपको लग रहा है। ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि आप स्लैब को डिजाइन कर रहे हो एक तरह का। तो वही किया आपने, कैपिटल डी, दिस स्मॉल डी प्लस क्लियर कवर प्लस हाफ द बार डायमीटर। ये वैल्यू है, इसको राउंड ऑफ कर दिया 400। इससे फिर स्मॉल यानी कि इफेक्टिव डेप्थ वापस से निकाल लिया, जो कि आ गई 352। ठीक है, अब आपकी थिकनेस मोमेंट के हिसाब से आ गई। देखिए, ये मोमेंट आ रहा है आपके स्टेम पर। मोमेंट किससे आया? ये फोर्सेस से आया। ये फोर्सेस में आपने जो स्प्लिट किए और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो आया उस वजह से मोमेंट आया। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स और उसका डिस्टेंस, इससे मोमेंट आया। मोमेंट को मद्देनजर रखे आपने डेप्थ निकाल लिया, कैपिटल डी फाइनल कर लिया। अब आप एएसटी निकालोगे, मिनिमम एएसटी 0.12% बीडी, और एएसटी मेन ये फॉर्मूले से। ये वैल्यू आई एएसटी की। आपने बार डायमीटर ऑलरेडी 16 का अज्यूम कर लिया है, आप स्पेसिंग निकाल लोगे, ये आपकी स्पेसिंग आ गई। लेकिन आपने जो रेनफोर्समेंट निकाला है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए निकाला है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूरी स्टेम की लेंथ पर आ रही है क्या? नहीं, तो आपको कर्टेलमेंट करना पड़ेगा। उसके पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट निकाल लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इज एएसटी मिनिमम। एएसटी मिनिमम के लिए बार 8 mm का, तो आपने स्पेसिंग निकाल लिया, 130 mm की स्पेसिंग आ गई। अब आप क्या करोगे? कर्टेलमेंट का प्रोसेस करोगे। कर्टेलमेंट आपको बता दिया गया है 0.63H, 0.79H। ठीक है, तो 0.63H पर आधे से भी आधा, 0.79H में जो ये पोर्शन बचा हुआ है उसमें आधा और नीचे में पूरा। तो आपका जो आया था दैट इज 60 mm, प्रोवाइड 16 mm का डायमीटर एट 60 mm सेंटर टू सेंटर। आप कहाँ चलाओगे? ये 0.79H को छोड़कर जो बची हुई है, तो 0.79H को छोड़कर जो डिस्टेंस है बचा हुआ उसमें पूरा लगाऊंगा मैं 16 mm फाई एट 60 mm सेंटर टू सेंटर। करेक्ट है, देखिए बार डायमीटर, सॉरी डायमीटर, ये बार्स आपके यहीं तक रहेंगे और यहाँ से फोल्ड होंगे। करेक्ट है, फोल्ड होंगे, ये एलडी आएगा। बार यहाँ तक सीधे रहेंगे, उसके बाद फोल्ड होंगे। ठीक है, तो एनीवेज ये जितना पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें पूरे बार डालूंगा। दैट इज आपका ये 60 mm, 16 mm के फाई के बार एट 60 mm सेंटर टू सेंटर। अब उसके ऊपर ये 0.79 और 0.63 के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि इतने में मैं आधे कर दूंगा बार, यानी कि एक आगे ले जाऊंगा, एक को छोड़ दूंगा, एक आगे ले जाऊंगा, एक को छोड़ दूंगा। तो इतने हिस्से में मैं ऐसे बार डालूंगा।
एक ऊपर एक छोड़ दिया, एक ऊपर एक छोड़ दिया, एक ऊपर एक छोड़ दिया, एक ऊपर एक छोड़ दिया। अब ऊपर वाले में और आधा, तो एक बार ऊपर इसको छोड़ दिया, एक ऊपर इसको छोड़ दिया, एक ऊपर इसको छोड़ दिया, एक ऊपर इसको छोड़ दिया, आधे हो गए ऑलरेडी। तो अगर ये 60 mm की स्पेसिंग पर चल रहे थे तो ये आधे हो गए, मतलब 120 mm की स्पेसिंग पर, और ऊपर वाले और भी आधे, यानी कि 120 120, ये 240 की स्पेसिंग पर हो गए। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया आपको। तो स्टेम का डिजाइन यहाँ कंप्लीट होता है। एलडी निकाल लेते हैं, 0.87 FY 5/4 ताऊ BT, 0.87 ये एफ वाई ये हो गया। फाई कितना ले रहे हैं आप, 16 mm का, 4 ताऊ BT 1.2 इंटू 1.6, ये वैल्यू आ गई। इसको राउंड ऑफ कर दिया 800 mm, तो मैं ये एलडी कितना दूंगा, 800 mm। बाहर को स्टेम से आगे जब बढ़ाऊंगा बेस स्लैब में, तो बेस स्लैब में उसको घुमाऊंगा 800 mm की लेंथ पे, ठीक है, 800 mm लेंथ लेकर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्लियर है। बेस स्लैब के डिजाइन पर आ जाते हैं, दैट इज योर पार्ट बी, यानी कि सेकेंड पार्ट ऑफ द रिटेनिंग वॉल। उसके लिए पहली स्टेप क्या करना है आपको, पूरे ग्रेविटी लोड्स और लैटरल लोड्स निकाल लेने के। लैटरल लोड में वही है, सिर्फ हाइट बढ़ गई है, के ए गामा इंटू कैपिटल एच आ गया, ठीक है। ये पी ए निकालना आता है आपको। एनीवेज पहले आप ग्रेविटी लोड्स की मार्किंग कर लो। इसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगल। W1 W2, दिस इज योर W3, जिसको गलती से W4 लिखने में आ गया, दिस इज W3, उसका डिस्टेंस x3, W4 उसका डिस्टेंस x4, और W5। अब देखिए आपकी जो सॉइल है वो इस तरीके से, यानी कि इसमें भी दो फिगर बन रहे, एक ऐसा काट दिया मैंने तो रेक्टेंगल बन जाता है और दूसरा ट्रायंगल। इसलिए ये सॉइल प्रेशर जो है या सॉइल का लोड जो है, इसको भी दो में कन्वर्ट कर दिया, W4 और W5, W4 x4, W5 और उसका डिस्टेंस x5। आई होप ये क्लियर है आपको। W1 कैसे निकालते हैं आपको आता है, बाय द फॉर्मूला एरिया ऑफ फिगर। एरिया ऑफ फिगर 0.2 इंटू 6.2, 0.2 इंटू 6.2 multiplied by unit weight of soil, unit weight of concrete, that is 25. W2 कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ फिगर, that is rectangle, triangle, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस है ये 0.2, हाफ 0.2 और हाइट 6.2, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट डेंसिटी, यूनिट वेट, ठीक है। W3 4 इंटू ये डिस्टेंस कितना था, ये आपका 0.5 था, है ना, तो 4 इंटू 0.5, ये देखिए, और ये कंक्रीट का बना है तो 25। W4 कैसे निकालूंगा, बेस इंटू हाइट, तो 2.1 इंटू 6.2, 2.1 इंटू 6.2, और उसकी यूनिट वेट ऑफ सॉइल का यूनिट वेट 17 दिया हुआ है। W5 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 2.1 इंटू ये हाइट, ये 0.76 निकली। कैसे निकली, देखिए आपके पास ये एंगल है 20 डिग्री का, आपके पास ये साइड पता है 2.1, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके ये साइड निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला लगाओगे, टी का फॉर्मूला लगाओगे, सॉरी टैन का फॉर्मूला लगाओगे। टैन का फॉर्मूला क्या बोलता है, टैन 20 इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो आप उस फॉर्मूले से निकाल लोगे। tan 20 इक्वल्स टू अपोजिट, दैट इज x, अपॉन एडजेसेंट इज 2.1, एडजेसेंट इज 2.1, तो बस वही निकाल लिया। x की वैल्यू आ गई 0.76, यानी कि हाइट आ गई आपकी 0.76। W5 के लिए फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 2.1 इंटू 0.76, हाफ इंटू 2.1 इंटू 0.76 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉइल, दैट इज 17। ये आ गया आपके W1 से W5 तक। इन सभी के डिस्टेंसेज x1 कैसे निकालोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आपको ये 2.1 पता है, तो 4 माइनस 2.1 माइनस ये 0.1, वैसा कर लो, ये ऐसा आ जा रहा है 1.5 प्लस 0.2 प्लस 0.1, 1.5 प्लस 0.2 प्लस 0.1, वैसे ये x2 का निकालोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक h/3 होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक b/3 होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2b/3,
ठीक है, तो 2b/3 प्लस 1.5, ये देखिए 2b/3 प्लस 1.5, b आपका 0.2 है ना, तो 2/3 ऑफ b प्लस 1.5, ये आ गया x2। x3 तो सिंपल है, 4 का आधा 2। x4 कैसे निकालोगे? x4 w4 से है ना, तो यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज, सॉरी 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 सॉरी, आप क्या करोगे, 2.1 का आधा कर दोगे, दैट इज 1.05, है ना। तो W4 के इधर 1.05 है और इधर 1.05 है, तो 4 में से यहाँ का 1.05 माइनस कर दो। ये मैं इधर से आया, वो इधर से आ रहा है, मैंने कैसा लाया वैल्यू, 4 में से 1.05 माइनस कर दो, तो यही वैल्यू आएंगे 2.95, है ना। मैं कहाँ से आया, यहाँ से आया, 4 में से सीधा सीधा यहाँ का 1.05 माइनस कर दिया। अब W5 पे आते हैं, W5 कैसे निकलेगा, W5 का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से यहाँ दिस इज 1/3 ऑफ बेस, लेकिन यहाँ से यहाँ 2/3 ऑफ बेस, ठीक है। तो आप क्या करो, 4 में से 1/3 ऑफ बेस माइनस कर दो, सीधा सीधा आप क्या करो, 4 में से 1/3 ऑफ बेस माइनस कर दो। कैसे करूंगा, 4 माइनस 1/3 ऑफ बेस, बेस कितना है इसका, 2.1, ये वैल्यू देख लो आप कितनी आती है, यही वैल्यू आएंगी 3.3 पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सभी फोर्सेस और उनके डिस्टेंसेस आ गए, ठीक है। अब आप लैटरल फोर्सेस भी निकाल लो, ये लैटरल फोर्स ये पीए कैसे निकालोगे, हाफ इंटू के गामा एच इंटू एच, है ना। यहाँ वैसे निकाल के दिखाया नहीं है क्योंकि आप लोग को आता है, देखिए है लिखा हुआ, निकाला हुआ है, हाफ इंटू के गामा एच इंटू एच, ये निकला हुआ है, पीए की वैल्यू आ गई। इसको आप मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दोगे तो किलो न्यूटन में आ जाएगा, ये 1 किलो न्यूटन मीटर वापस लिख दिया इसने, लेकिन ये किलो न्यूटन रहेगा, तो ये किलो न्यूटन के फॉर्म में आ गया। किस पे ऐड कर रहा है ये, h/3 पे ऐड कर रहा है, यानी कि 2.23 पे ऐड कर रहा है, ठीक है। इसके आप दोनों कंपोनेंट्स निकाल लोगे, पीए कॉस थीटा, पीए कॉस बीटा, पीए साइन बीटा, ठीक है। अब ये टोटल डब्लू में ये वाला भी एक और ग्रेविटी लोड आ रहा है, दैट इज पीए साइन बीटा, ये देखिए, क्योंकि ये लैटरल, ये इंक्लाइंड था, इसके दो कंपोनेंट बने थे, पीए कॉस बीटा एंड पीए साइन बीटा। पीए कॉस बीटा तो लैटरल हो गया, लेकिन ये वर्टिकल हो गया, तो ये ग्रेविटी फोर्स में काउंट होगा, पीए साइन बीटा। तो आपने जो पीए निकाला, ये वैल्यू, इसको इनटू साइन बीटा किया तो ये वैल्यू आ गई। बीटा इज योर डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन, दैट इज 20 डिग्री, है ना। अब आपके ये पूरे ग्रेविटी लोड्स को प्लस कर दिया तो दिस इज डब्लू, इसको अल्टीमेट कर दिया, ठीक है। अब इनका आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालना है, तो वेरिग्नॉस थ्योरम, यानी कि summation of moment of all the forces about any point equal to moment of resultant about the same point। तो हर एक फोर्सेस का मोमेंट, हर एक फोर्सेस का मोमेंट कैसे निकालोगे आप, देखो आपने ए पर सबका डिस्टेंस निकाला, तो W1 इंटू x1, W2 सॉरी W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3 प्लस W4 इंटू x4 प्लस W5 इंटू x5 प्लस पी ए साइन बीटा इंटू ये x6 इज इक्वल्स टू W इंटू एक्स बार, तो एक्स बार ये वैल्यू आ जाएगी 2.56 मीटर, ठीक है। अब ये x6 कैसे निकाला था हम उसको देख लेते हैं एक बार पहले। x6 ये एक्ट कहाँ करेगा, ये स्टेम के फेस पर एक्ट करेगा, है ना।
यानी कि कितने डिस्टेंस हो गया ये? तो ये हो गया 4 में से 2.1 माइनस कर दो, यानी कि 1.9, है ना। मैं लेफ्ट साइड से आ रहा, राइट साइड से आ रहा हूँ। 4 माइनस 2.1 किया तो बराबर है 1.9 मीटर आएगा। ये लेफ्ट से आया, मैं राइट से आया। चलो ठीक है, ये भी फोर्स निकल गया था, इसका भी डिस्टेंस निकल गया। अब दो यहाँ देखिए, आपके पास ये है, क्या नाम है, लैटरल फोर्स पी ए कॉस बीटा, और टोटल वर्टिकल फोर्स वो भी आपके पास, दैट इज डब्ल्यू। आप वो डब्ल्यू और पी ए कॉस बीटा से एक रिजल्टेंट निकाल सकते हो, यानी कि आर एक्स, यानी कि ये आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर से आप आर निकाल सकते हो। तो आपने आर निकाल लिया और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। यानी कि इंटू डब्ल्यू इंटू 2.56 इज इक्वल्स टू पी ए कॉस बीटा इंटू कैपिटल एच बाई 3, समझे। पी ए कॉस बीटा इंटू कैपिटल एच बाई 3, ये इतना लिखा है W1 x1 प्लस W2 x2, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं थी। W इंटू एक्स बार, W इंटू एक्स बार, W कैसा एक्ट कर रहा है, नीचे एक्ट कर रहा है, ऐसा, है ना। ये W सभी का W ऐसा आएगा, तो W इंटू एक्स बार यानी कि ये वैल्यू इंटू 2.56 इज इक्वल टू, क्योंकि ये ऐसा है क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, तो W इंटू एक्स बार माइनस पी ए कॉस बीटा इंटू एच बाई 3, ये एंटी क्लॉकवाइज। इन सब की जगह ये जितना चल रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सब की जगह लिखूंगा W इंटू एक्स बार, ऐसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, W इंटू एक्स बार और माइनस पी ए कॉस बीटा इंटू एच बाई 3, क्योंकि पी ए कॉस बीटा ऐसा है तो ऐसा जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। पी ए कॉस बीटा इंटू एच बाई 3 इज इक्वल टू आर इंटू उसका एक्स बार, तो वो ये जो आर आया इसका एक्स बार निकल जाएगा, वो 1.8 मीटर आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने रिजल्टेंट निकाल लिया दोनों का, आपके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लिया, उनका आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकाल लिया बाय वेरिग्नॉस थ्योरम। अब वो रिजल्टेंट मान लेते कि यहाँ कहीं है, उसका आपने डिस्टेंस निकाला 1.8, वो कहाँ से निकला, जहाँ से आप कैलकुलेशन कर रहे थे। कैलकुलेशन कहाँ से कर रहे थे, ए पॉइंट से, यानी कि यहाँ से। तो यहाँ से 1.8 मीटर पर है, और आपका फुटिंग का सीजी कहाँ पे है, 2 मीटर पे है। तो ये कुछ इसेंट्रिसिटी पर है, तो इसेंट्रिसिटी कितनी निकली, 2 में से 1.8 निकाल लो, दैट इज 0.2, है ना। देखिए आपका जो रिजल्टेंट निकला वो किसका निकला, ऑल द वर्टिकल फोर्सेस एंड लैटरल फोर्सेस का, ठीक है। तो मान लेते हैं वो, चलो ठीक है, वो वर्टिकल नहीं है, आड़ा है या जैसा भी है, ठीक है। तो आपने उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकाला तो वो मिल गया 1.8 मीटर पे है, वो 2 मीटर पे नहीं है, यानी कि सीजी पर नहीं है एकदम, वो सीजी से 0.2 की इसेंट्रिसिटी पर है, 0.2 की इसेंट्रिसिटी पर है, ठीक है। अब आप मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर एट बेस निकालोगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर एट बेस। तो इसके फॉर्मूले भी आपने पढ़ चुके हो आरसीसी में, सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम के, डब्ल्यू अपॉन बी 1 प्लस 6 ई बाई बी 1 माइनस 6 ई बाई बी, प्लस वाले में मैक्स, माइनस वाले में मिनिमम, करेक्ट है। इसेंट्रिसिटी आपकी 0.2 है, विड्थ आपकी 4 है, और डब्ल्यू आपका 50 जो भी आया था, आपका कितना आया था, डब्ल्यू इज 559, करेक्ट है। आपका डब्ल्यू यू है 559, करेक्ट है। तो उससे सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम आपने निकाल लिया। अब मैक्सिमम और मिनिमम किधर आएगा, क्योंकि सारा प्रेशर यहाँ से आ रहा है, तो वजन ज्यादा टो साइड में आएगा, करेक्ट है। मैक्सिमम प्रेशर आपका टो साइड में आएगा और मिनिमम आपका हील साइड में आएगा।
तो आपने हील साइड पर सिग्मा मिनिमम और टो साइड पे सिग्मा मैक्सिमम डाल दिया है। सिग्मा मैक्स आपका 181 पॉइंट समथिंग आया और सिग्मा मिनिमम आपका 97 समथिंग आया। करेक्ट है। मैक्स और ये मिनिमम का आपने डायग्राम बना दिया। मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर एट बेस का आपने डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम में भी आपको दो फिगर्स दिख रहे हैं, एक रेक्टेंगल दिख रहा है और एक आपका ट्रायंगल दिख रहा है। करेक्ट है। अब इसको मैंने, ये फुटिंग के नीचे ही आएगा, बेस के नीचे आएगा, तो ये मैंने बेस बना दिया अपना। बेस से जो कैंटिलीवर पोर्शन है, ये सेक्शन 1 के इधर साइड में और सेक्शन 2 के इधर साइड में, उनको मैंने एक सेपरेशन दे दिया। ठीक है, क्योंकि आपका कैंटिलीवर पोर्शन बेंडिंग करेगा, ये देखिए इस तरीके की और इस तरीके की, इस मैक्सिमम प्रेशर की वजह से। करेक्ट है। तो ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना है आपका, तो प्रोजेक्शन आपका 1.5 निकला था और ये आपका स्टेम विड्थ एट बॉटम 0.4 है। करेक्ट है। तो ये बचा हुआ हील का पोर्शन है 2.5। करेक्ट है। सिग्मा मिनिमम 97 पॉइंट समथिंग, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। सिग्मा मैक्स आपका 181 पॉइंट समथिंग, तो सिग्मा मैक्स से सिग्मा मिनिमम निकाल लिया मैंने, मुझे ये 84 मिल गया। करेक्ट है। अब ये पोर्शन कैसे निकालेंगे, मैं हर पॉइंट पे प्रेशर स्ट्रेस निकाल रहा हूँ। यहाँ पे सिग्मा मिनिमम है, यहाँ सिग्मा मिनिमम है, यहाँ सिग्मा मिनिमम है, यहाँ सिग्मा मिनिमम है। करेक्ट है। सिग्मा मैक्स से सिग्मा मिनिमम निकाल लिया, मुझे ये मिल गया। अब मुझे देखो, मैं ट्रायंगल पे काम कर रहा हूँ। ट्रायंगल पे मुझे यहाँ पता है 0 है, यहाँ पता है 84 है। करेक्ट है। आपको ये डिस्टेंसेस पता है 1.5, 0.4 और 2.1, तो ये टोटल कितना हो गया 4। तो 4 अपॉन 84 इक्वल्स टू 2.5 अपॉन ये, समझे, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली 4 अपॉन 84 इज इक्वल्स टू 2.1 अपॉन ये, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 44.1, ये वैल्यू 52.5। करेक्ट है। तो आपने हर पॉइंट पर स्ट्रेस निकाल लिया है। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं, जिसकी साइन, बेंडिंग मोमेंट की साइन डिपेंड करती है हॉगिंग एंड सैगिंग पर। साइन डिपेंड्स ऑन हॉगिंग एंड सैगिंग, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्योंकि आप बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो तो उसकी साइन हॉगिंग और सैगिंग पर डिपेंड करती है। फॉर टो प्रोजेक्शन, आप टो प्रोजेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो। टो प्रोजेक्शन मतलब ये साइड पे सेक्शन 1 पे, उस पे क्या क्या लोडिंग्स है वो चेक कर रहे हैं। सबसे पहला उस पर W1 है। करेक्ट है। W1 का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, 0.5, 1.5, देखिए 0.5 आपकी ये विड्थ और 1.5 ये, क्योंकि W1 निकाल रहे हो आप। यहाँ आते ये वाले नोट्स में चेक करते हैं। देखिए ये टो पोर्शन, ये हील पोर्शन, आपने सबका ये वैल्यूज निकाल लिया है। 98, 98, ये 98 था, ये 182 था, 182 में से 98 निकाल लिया, ये 88। ये कैसे निकाला, ये कैसे निकाला, ये आपको बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कर रहे हैं विद डिपेंड्स ऑन हॉगिंग एंड सैगिंग। इसको बोलते हैं हम हॉगिंग, इसको बोलते हैं सैगिंग, सैगिंग को प्लस, हॉगिंग को माइनस। करेक्ट है। आगे चलते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट फेस ऑफ टो स्लैब। टो स्लैब ले रहे हैं, यहाँ देखिए आपका फिक्स पोर्शन है, ये आपने टो बना लिया, टो का साइज 1.5 बाय 0.5। ठीक है। यहाँ पे इसका लोड डब्ल्यू टो, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा 1.5 इंटू 0.5, ठीक है, इंटू 25। करेक्ट है। लेकिन ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है और ये 1.5, 0.5 ये मीटर स्क्वायर बनाते हैं, तो इंटू 1 भी करना पड़ेगा। ओके, तब जाके आपको किलो न्यूटन के फॉर्म में मिलेगा। तो 1.5 इंटू 0.5 इंटू 25, जो भी वैल्यू आएगी इंटू 1 कर देंगे तो किलो न्यूटन में आ गया। यानी कि आप इसकी जो लेंथ है, फुल लेंथ को आप 1 कंसिडर करके मल्टीप्लाई कर दे रहे हो और इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया, तो ये अल्टीमेट के फॉर्म में आ गया। तो ये आपका आ गया WTU। ये लोड नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे से भी तो ऊपर प्रेशर आ रहा है, जिसको आप अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी बोलते हैं। इसकी वैल्यू, ये स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस एट बेस, जितना स्ट्रेस आ रहा था बेस पर उतना ही अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी आएगा।
तो ये स्ट्रेस डायग्राम को यूज कर रहा हूं मैं। यहाँ देखिए ये इतना पोर्शन तोड़ रहा हूँ, करेक्ट है। इसकी वैल्यू कितनी है 52.5 और 98.04, जो मिला के 150.56 बन जाता है। और यहाँ तो सिग्मा मैक्स ही है 182.08, ठीक है। अब आपका फिगर बन कैसा रहा है, एक रेक्टेंगल और एक और रेक्टेंगल और फिर ट्रायंगल, करेक्ट है। एक रेक्टेंगल फिर एक और रेक्टेंगल फिर एक ट्रायंगल। तो आप क्या करोगे, ये दो रेक्टेंगल को एक बना लिए, ये एक रेक्टेंगल जिसका अपवर्ड स्ट्रेस U1 और एक अपवर्ड स्ट्रेस ट्रायंगल का दैट इज U2। इसकी वैल्यू भी आपको आता है निकालना बाय एरिया ऑफ फिगर 150.56 इंटू कितना, ये 1.5, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली इसका हाफ इंटू बेस इंटू ये हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी है 182.08 माइनस 150.56, करेक्ट है, जो कि आती है 31.52। तो ये वैल्यू आ गई U2, ठीक है। अब आप इससे मोमेंट निकाल लो, इनके डिस्टेंसेस निकाल लो। WTU का डिस्टेंस कितना होगा, 1.5 का आधा 0.75 है ना। U1 का भी वैसे ही रहेगा 0.75, और U2 का जो डिस्टेंस है दैट इज x2, वो कैसे निकालेंगे, 2/3 ऑफ 1.5, 2/3 ऑफ 1.5 जो कि आ गया 1। अब इनसे मोमेंट निकाल सकते हो, आपको पता ही है दिस इज द फिक्स पॉइंट, ये आपका फिक्स पॉइंट है, और मोमेंट आपको विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट ही निकालना पड़ता है, करेक्ट है। तो WT, या तो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, U1 इंटू x1, U2 इंटू x2 माइनस WTU इंटू XTU माइनस WTU इंटू XTU, ये वैल्यू आ गई 171.92, करेक्ट है। दिस इज द मोमेंट एट टो। वैसे मोमेंट एट हील निकाल रहा हूँ, हील का पोर्शन ले ले रहा हूँ, ये हील का पोर्शन, इसमें से नीचे आने वाला फोर्स और ऊपर जाने वाला स्ट्रेस दोनों ले ले रहा हूँ। नीचे जाने वाले फोर्सेस ये है, इनकी वैल्यूज मुझे निकालना आता है। माय एरिया ऑफ फिगर WHU, यानी कि W लोड एट हील अल्टीमेट फॉर्म में, अल्टीमेट लोड एट हील, अल्टीमेट लोड 4 वाला और 5 वाला जो पहले आपने निकाल चुके हैं, ठीक है। U3 निकाल लेंगे कैसे, 98.04 इंटू 2.1, और U4 कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इज आपका 2.1 और हाइट इज 44.12। ये देखिए इनके डिस्टेंसेस भी आपको निकालने आते हैं। आपको डिस्टेंसेस कहाँ से निकालने हैं, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, ये आपका फिक्स पॉइंट है, करेक्ट है। तो डिस्टेंसेस भी आपको निकालना आता है। ये देखिए ये रेक्टेंगल्स के तो रहेंगे 2.1 का आधा, दैट इज 1.05, 1.05। इसकी वैल्यू रहेगी 2/3 ऑफ 1.05, ये देखिए सॉरी 2/3 ऑफ 2.1, ये रहेगी। इसकी भी आधी रहेगी 1.05, और इसकी रहेगी 1/3 ऑफ 2.1, 1/3 ऑफ 2.1, करेक्ट है। इनसे मूवमेंट निकाल लोगे आप, ये पूरे फोर्सेस, दिस इनटू डिस्टेंस, दिस इनटू डिस्टेंस, दिस इनटू डिस्टेंस। यहाँ देखिए आप एक बात, यहाँ देखिए आप, ये वाला फोर्स ऐसा घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसा, यानी कि ये वाला फोर्स ऐसा घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि हॉगिंग करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसको हम माइनस कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ देखिए हम हॉगिंग एंड सैगिंग के हिसाब से साइन कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, ये दोनों फोर्सेस इस बीम को ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे, यानी कि सैग करने की कोशिश करेंगे, यानी दोनों को आपको, ये दोनों ऐसे घूमेंगे और सैग करने की कोशिश करेंगे, और सैगिंग को हम पॉजिटिव लेंगे। इज इट क्लियर। अब यहाँ आते हैं, ये तीनों फोर्सेस ये क्या करने की कोशिश करेंगे, ये तीनों फोर्सेस ऐसे सैग करने की कोशिश करेंगे, ये तीनों फोर्सेस ऐसा आपके स्लैब को बेंड करने की कोशिश करेंगे।
यानी कि ये हॉगिंग करने की कोशिश करेंगे, करेक्ट है। तो इन तीनों को हम माइनस लेंगे, ये देखिए डब्लू वाले माइनस। अब ये तीन क्या करने वाले, ये दो क्या करने वाले देखते हैं। ये दोनों ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, ठीक है। मतलब ये स्लैब को क्या करेंगे, ऐसे बेंड करेंगे, ऐसे मतलब सैगिंग करेंगे। सैगिंग मतलब पॉजिटिव। तो इन दोनों को आपको पॉजिटिव लेना है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ है आपको। सैगिंग और हॉगिंग बिहेवियर के हिसाब से साइन ले रहे हैं, तो यू वालों को हम पॉजिटिव लेंगे, तो वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना निकला वो चेक कर लेते हैं। यहाँ 171 निकला टो पे, और हील पे 170 निकला। तो हम कितना मैक्सिमम क्या हुआ हमारा, टो वाला, मैक्सिमम इज टो वाला। अब इसके हिसाब से हम अपनी डेप्थ फाइनल करेंगे, अपनी चेक करेंगे डेप्थ को, ठीक है। तो चेक फॉर डेप्थ, एमयू लिमिटिंग, एमयू मैक्स इक्वल्स टू एमयू लिमिटिंग, करेक्ट है। 0.13 डेप्थ के बी डी स्क्वायर इंटू आपका मैक्सिमम मोमेंट। आप डी निकाल लो, डी आया 250, ठीक है। डी कितना आया 250। आपने कितना प्रोवाइड किया हुआ है, चलिए देख कर आते हैं हम। हमने कितना डेप्थ प्रोवाइड किया है, वैसे इधर लिखा ही होगा ना। हमने 500 प्रोवाइड किया है। ये देखिए, ये स्टेप, स्टार्टिंग के स्टेप में हमने थिकनेस ऑफ बेस स्लैब निकाला था कितना, h/10 दैट इज 0.5, दैट इज 500। लेकिन वो तो प्रिलिमिनरी डायमेंशन था, वो डेप्थ हमने h/10 से निकाला, वो कोई सेफ डेप्थ है कि नहीं है हमको कैसे पता चलेगा। तो हमने अभी जाके उसका चेक किया है और पता किया है कि चेक फॉर डेप्थ करने पर हमको डी कितनी जरूरत है, 250। अगर उसको कैपिटल डी बनाए तो 12 mm का बार, 50 mm का क्लियर कवर ले लिए तो 298 आता है कैपिटल डी, और हमने कितना प्रोवाइड किया, 500। तो अब पता चल रहा है हमको कि जो हमने प्रोवाइड किया था वो सही थी, वो सेफ है, ठीक है। अगेंस्ट बेंडिंग मोमेंट इट इज सेफ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे विथ, सॉरी, आप क्लियर कवर कितना ले रहे हो, 50। बेस स्लैब में क्लियर कवर ले रहे हो 50 का, और आप बार ले रहे हो 12 mm के, ठीक है। आप ये कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, क्लियर कवर 40 mm भी ले सकते हो, 16 mm का बार, जो भी है। आप बार का साइज जो भी ले सकते हो, 12 लेना है 16 लेना है आपके ऊपर है। क्लियर कवर 50-60, 50 से 40, आप 50 ही लेना, ठीक है। तो कैपिटल डी हमारा सही है, दैट इज 500। 500 का हमने आधा, सॉरी, इफेक्टिव डेप्थ बना लिया, दैट इज -40 -12/2, या -50 -12/2 बोलो, उससे आ जाएगी वैल्यू 444, ठीक है। अब आप रेनफोर्समेंट निकाल लो, क्योंकि आपने डेप्थ तो चेक कर लिया, डेप्थ आपकी सही आई है। अब आपको दो जगह के आपको रेनफोर्समेंट निकालना पड़ेगा। टो स्लैब, क्योंकि टो के सामने का मूवमेंट भी निकाला है आपने और हील के सामने का भी, तो टो का मूवमेंट जो था वो यूज करेंगे। आपको विड्थ तो पता है 1000 ले रहे हो, ये आपका 440, ये आपका 444 आया हुआ है, ठीक है। तो आप ये सब वैल्यूज डालेंगे, ASTI टो निकालेंगे। आपने डायमीटर तो 12 mm का सिलेक्ट कर चुके हो, ठीक है। तो आप स्पेसिंग निकाल लेंगे, स्पेसिंग आ गई 100 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये टो के आपके रेनफोर्समेंट रेडी है। वैसे ही आप हील के रेनफोर्समेंट निकालेंगे, हील का मोमेंट डालकर। डेप्थ तो आपकी पता है आपको 444 है, 454 नहीं है। तो AST एट हील भी आ गया। आपने डायमीटर तो अपना कंसिडर कर चुके हैं 12 mm, तो आपकी स्पेसिंग निकल गई है 100 mm सेंटर टू सेंटर एट हील, ठीक है। तो आप ऐसा स्टेटमेंट लिख देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट लगेंगे तो AST मिनिमम 0.12% BD करके निकाल लेंगे। उसके लिए रेनफोर्समेंट 8 mm का चूज करेंगे, उसकी भी स्पेसिंग निकालेंगे, आगे 80 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब कुछ चेक्स है जो आपको अकम्प्लिश करने हैं, वो चेक्स पर हम थोड़ा नजर डालते हैं। चेक फॉर स्टेबिलिटी फॉर रिटेनिंग वॉल। नंबर 1 इज चेक फॉर नो टेंशन एट बेस। बेस पे टेंशन आ रहा है क्या, हम चेक करते हैं। तो वो बोल रहा है फॉर नो टेंशन एट बेस योर इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन b/6। आपकी जो लोड की इसेंट्रिसिटी है, आपका लोड, या देखिए यहाँ कहीं रिजल्टेंट आया था आपका जो कि CG पे नहीं था, इसेंट्रिसिटी पे था। आपकी CG अगर यहाँ है तो CG से एक इसेंट्रिसिटी पर था, तो वो इसेंट्रिसिटी कितनी थी आपकी,
आपको पता था वो एसेंट्रिसिटी आई है 0.2, करेक्ट है। तो अब ये 0.2 मीटर की एसेंट्रिसिटी जो आई है, अगर इसेंट्रिसिटी आपकी इसेंट्रिसिटी एट नो कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन b/6, b/6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो b/6 की वैल्यू बोल रहा है वो कितनी आ रही है 0.67। समझ रहे हो? आपको बोल रहा है कि अगर आपकी 4 मीटर की लेंथ है, आपकी 4 मीटर की लेंथ है, तो b/6 मतलब कितना हो रहा है 0.67। तो मान लो यहां से लेके यहां तक इतने के रेंज में ही आपका रिजल्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। उसकी इसेंट्रिसिटी b/6 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर b/6 से ज्यादा आ गई तो फिर सॉरी ये सीजी है आपका, सीजी से चाहे यहाँ ले लो या चाहे यहाँ ले लो, दोनों में से कहीं भी आपका रिजल्टेंट आ रहा है, चाहे इस एंड पर आ रहा है या इस एंड पर आ रहा है, ये दूरी 0.67 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका तो रेनफोर्समेंट यहाँ रखा हुआ है यानी कि 0.2 पर। अगर ये 0.67 है तो ये रिजल्टेंट आपका इतना ही दूर जा सकता है, या सीजी से इधर अगर 0.67 है ये, तो आपका रिजल्टेंट सिर्फ इतना ही दूर जा सकता है। तो खुशकिस्मती से आपका रिजल्टेंट 0.2 मीटर पर है, जो कि काफी अंदर है। तो आपके बेस पर टेंशन क्रिएट नहीं होगा, इस तरीके से टेंशन नहीं आएंगे, ठीक है ना। आगे आते हैं, चेक फॉर मैक्सिमम शेयर एट बेस। तो योर मैक्सिमम स्ट्रेस, या जो भी आप बोल रहे हो, मैक्सिमम स्ट्रेस एट बेस शुड बी लेस देन अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस जितना है आपकी एसबीसी में उसको ताकत होनी चाहिए झेलने की। आप एसबीसी को अल्टीमेट कर सकते हो बाय इम्प्रोवाइजिंग इट्स प्रॉपर्टीज। तो ठीक है, हम सेफ बेयरिंग कैपेसिटी नहीं, आप अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ले रहे हो, ठीक है। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, क्योंकि आप प्रॉपर्टी को इनहेंस कर सकते हो इसलिए आप एसबीसी से ऊपर जा रहे हो। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, आपका मैक्सिमम स्ट्रेस अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी से ऊपर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज आपकी फुटिंग या बेस स्लैब धस जाएगा। आपका अल्टीमेट स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेस इतना आया है 182.08, it should be less than ultimate bearing capacity. Now what is this ultimate bearing capacity? It is 2 times or 3 times safe bearing capacity. हम 2 times ही पकड़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो 2 times into 120 is 240। इतना आप सॉइल में प्रॉपर्टी इनहेंस कर सकते हो बाय एडिंग सम स्टेबलाइजर्स इन इट, ओके। तो हमने प्रॉपर्टी अगर अच्छी करी है अपनी सॉइल की, तो क्या वो मैक्सिमम स्ट्रेस से ज्यादा है? हाँ, मैक्सिमम स्ट्रेस से, जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है उससे ज्यादा हमारी सॉइल की कैपेसिटी है, तो सॉइल धसेंगे नहीं। तो चेक फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस एट बेस, ये भी सेफ हो गया। थर्ड चेक, दैट इज चेक फॉर ओवरटर्निंग। क्या मेरी बेस स्लैब या रिटेनिंग वॉल प्रेशर्स की वजह से ओवरटर्न तो नहीं हो जाएगी, यानी घूम तो नहीं जाएगी? ये भी चेक कर लेते हैं हम। तो check for overturning says resisting moment upon overturning moment should be greater than 1.2. Okay, resisting moment upon overturning moment should be greater than 1.2. अब resisting moments कौन से हैं और overturning moments कौन से हैं, देखते हैं हम। देखिए, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, इससे जो मूवमेंट आएगा ये रेजिस्ट करेगा आपकी फुटिंग को। और जो धक्का देने वाले जो है ये वाले 114 वाला जो फोर्स है, ये फोर्स ओवरटर्न करेगा। ये फोर्स क्या करेगा, ऐसा घुमाने की कोशिश करेगा आपकी फुटिंग को। और ये जो फोर्स है, ये देखिए इससे क्या हो रहा है, घूम रहा है। और ये जो फोर्स है इसको दबाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ऐसे दबाने की कोशिश करेगा। तो ओवरटर्निंग मोमेंट शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी, ओवरटर्निंग मोमेंट कम रहना चाहिए और रेजिस्टिंग मोमेंट ज्यादा रहना चाहिए। तो वो इसका रिलेशन बता रहा है, रेजिस्टिंग मोमेंट अपॉन ओवरटर्निंग मोमेंट शुड बी ग्रेटर देन 1.2। अगर ऐसा है तो वो सेफ रहेगा। आइए चेक कर लेते हैं इसके ऊपर भी हम।
रेजिस्टिंग मोमेंट और ओवरटर्निंग मोमेंट। तो ओवरटर्निंग मोमेंट कौन करेगा? ये पी ए कॉस बीटा, कितने डिस्टेंस के साथ? अपने h/3 डिस्टेंस के साथ। तो पी ए कॉस बीटा इंटू h/3 की वैल्यू निकाल लिया, ये हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये मोमेंट ओवरटर्न करेगा। और रेजिस्टिंग मोमेंट्स कौन से रहेंगे? जो भी वर्टिकल रहेंगे। वर्टिकल में W1 W2 3 4 5 और वो पी ए साइन बीटा, ये सभी रहेंगे। तो इनके डिस्टेंसेस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये मोमेंट्स बनाएंगे। ये पूरे वर्टिकल फोर्सेस के जो मोमेंट्स है ये रेजिस्टिंग मोमेंट्स रहेंगे। तो इनकी वैल्यू निकाल लिया, mr अपॉन mo, सॉरी 0.9 mr अपॉन mo शुड बी ग्रेटर देन 1.2। तो आपने वही किया, 0.9 mr अपॉन mo से वैल्यू निकाला, ये वैल्यू आई 3.35, शुड बी ग्रेटर देन 1.2, तो करेक्ट है। इट इज सेफ अगेंस्ट ओवरटर्निंग। नाउ लास्ट चेक इज चेक फॉर स्लाइडिंग। अब स्लाइडिंग कब होगी? अगेन जब धक्का देने वाला फोर्स ज्यादा रहेगा और रोकने वाला फोर्स कम रहेगा। अब रोकने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक तो ये रोकेगा और एक ये रोकेगा, फ्रिक्शन। तो ये P क्या होगा? ये फोर्स इसको स्लाइड कराएगा, लेकिन ये जो फोर्स है, ये फोर्स फ्रिक्शन में हेल्प करेगा। ये फोर्स फ्रिक्शन बढ़ाएगा। कैसे? आप सबको मैकेनिक्स में फ्रिक्शन चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा है कि फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं। फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन। फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू इनटू एन, एंड एन इज योर नॉर्मल रिएक्शन। एन इसको बोलते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होता है। करेक्ट है? एन इज योर नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका एन है। फोर्स का फॉर्मूला है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू डब्ल्यू नहीं है, म्यू इंटू एन है। और एन कितना होता है? एन इज इक्वल्स टू जो ऊपर से फोर्स आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। जितना डब्ल्यू रहेगा उतना एन रहेगा, तभी तो बॉडी वहाँ इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहती है। अदरवाइज बॉडी तो धस जाती है। लेकिन जब बॉडी नहीं धस रही है, उसका यही मतलब है कि जितना वर्टिकल फोर्स है उतना ही नीचे से नॉर्मल रिएक्शन है। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू इंटू एन। उसको अगर अपन दूसरी लैंग्वेज में अब बोले तो मैं अब लिख सकता हूँ कि म्यू एन को मैं बोल सकता हूँ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू, क्योंकि एन इज इक्वल टू डब्ल्यू। करेक्ट है? अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग शुड बी ग्रेटर देन 1.4, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग का फॉर्मूला दिया हुआ है 0.9, या रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन हॉरिजॉन्टल फोर्स। रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन हॉरिजॉन्टल फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स में कौन सा आ रहा है? फ्रिक्शन, दैट इज म्यू इंटू एन या म्यू इंटू डब्ल्यू। और हॉरिजॉन्टल फोर्स में कौन सा आ रहा है? ये वाला फोर्स, लैटरल फोर्स। लैटरल फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है? पी ए कॉस बीटा। ठीक है? और म्यू एन जो है या म्यू डब्ल्यू जो रेजिस्टिंग फोर्स है, रेजिस्टिंग फोर्स की भी वैल्यू को वो थोड़ी सी कम करके रखता है। यानी आप 1 पकड़ते नहीं हो, 1 से भी कम पकड़ते हो, 90% ऑफ इट पकड़ते हो, दैट इज 0.9। आई होप क्लियर है आपको कि रेजिस्टिंग फोर्स जितना 100% है, हम उतना नहीं पकड़ रहे, उसको भी थोड़ा सा हम कम पकड़ रहे। कितना पकड़ रहे? 10% लेस करके, जैसे दैट इज 90%। और फिर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पता चला इसकी वैल्यू आ रही 1.6 विच इज ग्रेटर देन 1.4, सो इट इज सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग। अगर स्लाइडिंग में सेफ नहीं आता है, अगर स्लाइडिंग में सेफ नहीं आता है, तो आप क्या करते हो? शेयर की प्रोवाइड करते हो ऑफ साइज 1 मीटर बाय 1 मीटर। ठीक है? इससे क्या होता है? ये 1 मीटर प्रोवाइड करने से, यहाँ देखिए, एडिशनल एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे कि ये प्रेशर धक्का देता है, तो ये प्रेशर रोक के रखता है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ है। यहाँ से जब धक्का पड़ेगा तो ये अर्थ भी काउंटर फोर्स लगाएंगी। जैसे कि यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, यहाँ अर्थ है, तो ये अर्थ काउंटर फोर्स लगा के रिएक्शन पैदा करता है। वैसे यहाँ पे फोर्स अगर है और ये धक्का देने की कोशिश कर रहा है, तो शेयर की लगाने से इतनी हाइट जो है, इतनी हाइट का अर्थ अपोजिट रिएक्शन फेंकेगा। अगर ये एक्टिव फोर्स है तो ये पैसिव फोर्स यहाँ क्रिएट होता है। ठीक है?
और फिर उसके बाद नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना बनता है, पी ए माइनस पीपी, पी ए माइनस पीपी। तो क्या हो जाता है आपका, ये जो है इसकी वैल्यू कम हो जाती है, और इसकी वैल्यू कम हो गई तो आपका टोटल वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर कम कर दिया आपने तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी और ये 1.4 से बढ़ जाएगी। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो हमको तो जरूरत नहीं पड़ी शेयर की लगाने की, आपको मैंने एक नॉलेज दे दिया हूँ। अगर सेफ नहीं आता है स्लाइडिंग में तो यू विल प्रोवाइड अ शेयर की ऑफ साइज 1 मीटर बाय 1 मीटर, जिसकी वजह से एक पैसिव प्रेशर, अर्थ प्रेशर डेवलप होता है। इसकी वैल्यू तो आपको निकालना आ जाएगा, जैसे पीए निकालते हैं वैसे पीपी निकाल लोगे, ठीक है। और तब जाके नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा आपका, पीए माइनस पीपी, पीए माइनस पीपी। तो आपका ये डिनोमिनेटर की वैल्यू अब कम आ जाएगी, क्योंकि पीपी से सब्ट्रैक्शन हुआ है, और जब डिनोमिनेटर कम हो गया मतलब ये टोटल वैल्यू ज्यादा आएगी, 1.4 से बढ़ जाएगी। तो आपकी स्लाइडिंग के अगेंस्ट में सेफ आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज कंप्लीटेड विथ योर डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल कवरिंग द डिजाइन ऑफ स्टेम एंड बेस स्लैब, ठीक है। अब इसमें मैंने रेनफोर्समेंट डिटेलिंग कर दी हूँ। देखिए, स्टेम बनाया, उसका साइज लिख दिया 0.2 ऊपर से, नीचे से 0.4, टो का प्रोजेक्शन 1.5, हील का प्रोजेक्शन 2.1, टोटल वेट 4, ये डेप्थ 0.5, ये 6.2, टोटल 6.7, अंडरग्राउंड 1.2, ओवरग्राउंड 5.5, ठीक है। अब स्टेम में रेनफोर्समेंट डाला मैंने, ये तो हमने पहले ही बना लिया था कि 60 mm, 16 mm के बाहर थे, 60 mm, फिर 120, फिर 240, करेक्ट है। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट भी निकाला था, ठीक है। वही डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट यहाँ भी चलाते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनली भी और ट्रांसवर्सली भी, वही रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन के जो थे। 8 mm के बाहर 130 mm सेंटर टू सेंटर, 8 mm के बाहर 130 mm सेंटर टू सेंटर। अब बेस स्लैब के रेनफोर्समेंट डालिए। बेस स्लैब के रेनफोर्समेंट आपने टो के और हील के अलग अलग निकाला है। ये टो के रेनफोर्समेंट 12 mm 5 एट 100 mm सेंटर टू सेंटर, ये डाला, ठीक है, जो नीचे है। और हील पर रेनफोर्समेंट जो है 12 mm 100 mm सेंटर टू सेंटर, ये ऊपर डाला। और ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। अब मुझे ये बताइए, टो रेनफोर्समेंट नीचे क्यों है, हील रेनफोर्समेंट ऊपर क्यों है? वजह देखिए, वापिस से आते हैं हम अपने रेनफोर्समेंट पर, मूवमेंट पर। मूवमेंट एट टो पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव आया था मतलब ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये बेस स्लैब पे सैगिंग क्रिएट कर रहा है। पॉजिटिव मतलब सैगिंग, सैगिंग मतलब टेंशन किधर है, टेंशन नीचे है, तो रेनफोर्समेंट किधर लगेगा, नीचे लगेगा, इसलिए AST2 नीचे लगाया। मूवमेंट एट हील, ये क्या आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव मतलब हॉगिंग क्रिएट करेगा बेस स्लैब पर, नेगेटिव मतलब हॉगिंग क्रिएट करेगा बेस स्लैब पर। तो टेंशन किधर आया, टेंशन आया ऊपर, तो रेनफोर्समेंट AST एट हील के रेनफोर्समेंट ऊपर लगेंगे। आई होप क्लियर हो गया आपको कि AST एट हील ऊपर लगेंगे। और ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो है, यानी कि जो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, जो कि आपने निकाला था 8 mm 5 80 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। देखिए, ये टो का साइज, टो का रेनफोर्समेंट दिखाया है, यानी कि ये नीचे वाले रेनफोर्समेंट दिखाए, नीचे वाले रेनफोर्समेंट। तो मैंने क्या किया, बेस स्लैब बनाया, नीचे के रेनफोर्समेंट ये ऐसे डाल दिया। ये देखिए, AST हील, AST टो 12 mm 5 100 mm सेंटर टू सेंटर, और उनको परपेंडिकुलर जो जा रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट 8 mm 5 80 mm सेंटर टू सेंटर। वैसे हील का बना लूंगा, मतलब हील मतलब ये ऊपर वाले रेनफोर्समेंट, वही बेस स्लैब, वही सीधे 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 बार। अब वो है AST हील 12 mm 5 100 mm सेंटर टू सेंटर, और उनके परपेंडिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। दैट इज इट विद द बेस स्लैब का, बेस स्लैब एंड स्टेम का डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल। वन वेरिएबल और वेरिएशन दैट इज गोइंग टू कम इन दिस डिजाइन इज, इसकी जगह सीधा हो जाएगा।
सीधा हो जाएगा तो क्या डिफरेंस रहेगा, जब आप पीए निकालोगे तो ये डायग्राम आपका ऐसा बनेगा। अगर सरचार्ज लोडिंग होगी तो ये और ये दोनों बनेगा। तो PA1 PA2 दो निकालोगे आप, जैसे कि आपने हमारे प्रैक्टिकल वाला जो एक फाइल दिखाया था मैंने आपको, वेट अ सेकंड, देखिए चेंज में यही होगा कि सीधा कर देगा और सरचार्ज लोडिंग दे देगा। तो उस वजह से क्या होगा, दो प्रेशर डायग्राम बनेंगे, PA1 PA2, इसका आप PA निकाल लोगे। देखो PA1 PA2, इसका PA मतलब सम कर लोगे, उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वेरिग्नॉन थ्योरम से निकाल लोगे, बस यही डिफरेंस है। और जब आप यहाँ पे के निकालोगे, के का फॉर्मूला 1 माइनस साइन पाई अपन 1 प्लस साइन पाई रहेगा, वो बड़ा वाला नहीं रहेगा, कॉस बीटा वाला नहीं रहेगा। ठीक है, यही डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है, बाकी पूरा एज इट इज रहेगा। ये देख, यहाँ पे टेढ़ा नहीं सीधा आएगा। तो यहाँ पिछली बार क्या हो रहा था, W4 W5 दोनों सॉइल के रहते थे, यहाँ क्या होगा, W4 आपका सॉइल का है, W5 आपका सरचार्ज का रहेगा। तो देखो W1 से W5 निकाल लोगे और ये सीधा वाला रहेगा, इसमें साइन कॉस और साइन करके स्प्लिट नहीं आएगा। इसमें PA1 PA2 ये दो रहेंगे। ये देखो PA1 PA2, इनका आप रिजल्टेंट निकाल लोगे। ये पूरे W का एक रिजल्टेंट W और ये दोनों PA का एक रिजल्टेंट PA और उसका डिस्टेंस, यहाँ भी W और उसका डिस्टेंस। ठीक है, अब ये दोनों है तो इनका एक R निकाल लिया आपने, और वो R का भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकाल लेंगे, उसी का इसेंट्रिसिटी भी निकाल लेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर जैसा निकालते थे वैसा ही। बाकी एवरीथिंग इज ऑल सेम। ठीक है, सभी सभी चीज एग्जैक्टली सेम रहेगी। बेंडिंग मोमेंट एट फेस ऑफ हील स्लैब, इसमें आपका क्या आएगा, W एट हील, W4 W5 ये पूरा आएगा। W एट हील जिसको मैं W3 लिख रहा हूँ यहाँ पे, W4 W5 4 रहेगा। ठीक है, इसका मोमेंट एट हील निकालना है तो ये पूरे फोर्सेस इंटू इनका डिस्टेंस यहाँ पर, और ये दोनों फोर्सेस इंटू इसका डिस्टेंस यहाँ पर। करेक्ट है, ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये ऐसे घूमने वाले हैं, क्या क्रिएट करेंगे, ये हॉगिंग क्रिएट करेंगे, तो नेगेटिव लेंगे इनको। यहाँ पे देखिए साइन गलत लिखी हुई है, W में नेगेटिव साइन आएगी। ठीक है, ये क्या क्रिएट करने वाले हैं, ये ऐसे फोर्स हो गए, ये ऐसा मोमेंट क्रिएट करेंगे, मतलब कि ये सैगिंग करेंगे, इनको आप पॉजिटिव लिखेंगे, U वाले पॉजिटिव रहेंगे, W वाले नेगेटिव रहेंगे, आप इसको ख्याल रखेंगे, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव completed and you have understood with the design of retaining wall, and each and every terms and each and every portion of it. So please इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे और इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, दोनों ही एग्जांपल्स पर, इंक्लाइंड बैकफिल पर और फ्लैट बैकफिल पर। So thank you very much.